Sir, thank you for answer. Welcome on this beautiful evening on the launch of Yuva Sangam portal. On this beautiful evening on the launch of Yuva Sangam portal, under the aegis of Ek Bharat Shreshtha Bharat, people of different regions, different states, moved by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji during the Rashtriya Ekta Divas. भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का अपना अलग महत्व है। दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री कानून एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, city portrays different customs, speaks a different language. Harmony, it makes our nation the Bhavya Bharat. Unity in diversity is the feature of our land, which binds people. We even consider nation with welcome address. Sir. Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Law Minister, Shri Kiren Rijiju ji, Ministers of State for Education, Dr. Subhash Sarkar ji and Dr. Rajkumar Ranjan Singh ji, Honorable Members of Parliament who have taken the time to come to this function, my colleague Secretary Lok Ranjan ji, my colleagues in the ministry and the participating ministries, press, media, and all other friends who have joined this occasion. All the education institutions, which was coordinated by AICTE, we had 1,000 students visiting all the students in a period of 6 months. After that, inspired by your directions and the Honorable Prime Minister's direction, we organized the Kashi Tamil Sangamam from the rest of the country to the northeast. I think the learnings that we have taken forward in the KTS program, we would like to inculcate it here in this pilot phase. We are inspired by your deep association with this program. This is the 4th meeting that we have held under your leadership and the participant ministries also. I think the guidelines and inputs that you have provided will only enrich this program to make it a people's movement, and I'm sure the higher education institutions will come forth and build this type of a rapport to ensure that this program surpasses all the ones that we have done in the past. I again thank you all for taking the time to come here. Between 8 northeastern states and 14 other states. May I now request Shri Anurag Singh Thakur ji, a sports enthusiast and a commissioned officer in the Territorial Army, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, to address the August gathering. Sir, please. के माननीय शिक्षा एवं स्किल्स मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, मेरे प्रिय मित्र, भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री किशन रेड्डी जी, आदरणीय सुभाष सरकार जी, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सिंह जी, अन्य विभागों के सभी माननीय अधिकारीगण, माननीय सांसदगण, उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया के आए हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। युवा संगम पोर्टल लॉन्च के इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर मैं जहां एक और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के युवाओं के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया सोचा है, और जो जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, आज से 8-9 वर्ष पहले इसका बजट मात्र 900 करोड़ रुपया, 950 करोड़ रुपया होता था, जो बढ़कर इस बार 3397 करोड़ किया है। मैं बहुत बहुत आभार उनका इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ। इसी तरह से ही युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति 34 वर्ष इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आ पाई। मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खेलो इंडिया जैसे अभियान
भारत के खिलाड़ियों के लिए टॉप्स जैसी योजनाओं से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट, ये भारत के युवाओं के लिए करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में यूपीए की सरकार देखती थी, एक्ट ईस्ट की सोच को लेकर चले हैं और इस अष्टलक्ष्मी का सही मायने में उद्धार किसी ने किया। उस क्षेत्र का अगर पूरी तरह से शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, हवाई पट्टी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में होने का काम हुआ। आज का ये कार्यक्रम कहने के लिए पोर्टल लॉन्च है, लेकिन हम जब युवा संगम की बात करते हैं तो हम दुनिया के उस देश की बात कर रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी किसी देश में है तो हमारे भारत में है। और भारत जैसा कोई देश नहीं, इतना विविध, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, फिर भी साझा परंपराओं, सांस्कृतिक और मूल्यों की प्राचीन सीमाओं से एक साथ बंधा हुआ है। इस तरह के बंधनों को विभिन्न क्षेत्र के लोगों और जीवन के तरीकों के बीच निरंतर पारस्परिक संपर्क के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है। जहां एक और हमने प्रधानमंत्री जी के निरंतर दौरे जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के देखे हैं, वहीं पर 140वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब 31 अक्टूबर 2015 को मनाई गई, तब प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी। 2016-17 में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में इस पहल की घोषणा भी की और इस अभिनव उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच में समझ और जुड़ाव बढ़ा है, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत हुई है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात की, तो उसमें जहां पहला भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, प्रण है, वहीं पर अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने की बात है, वहीं पर गुलामी की सोच से मानसिकता पाना, एकता एकजुटता को बनाए रखना और हर भारतीय को अपना कर्तव्य पालन करना। तो जब गौरवशाली इतिहास की हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को देखे बिना हम अपने गौरवशाली इतिहास को, परंपराओं को और संस्कृति को जान ही नहीं सकते। और मैं अपना अनुभव कहना चाहता हूं, मैं तो अपने स्कूल के समय से एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में देश के बहुत सारे हिस्से देखे, लेकिन उस समय नॉर्थ ईस्ट क्रिकेट खेलने में जुड़ा भी नहीं था तो मैं देख भी नहीं पाया। सांसद बना, बहुत सारे राज्यों को घूमने का अवसर मिला, लेकिन युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तब जाके देश देख पाया। आज देश के करोड़ों युवा ऐसे हैं जिनको शायद 2 राज्यों से ज्यादा देखने का अवसर भी नहीं मिलता होगा। तो कोई पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, ऐसे 18 साल से 30 वर्ष के युवाओं को देश को देखने का, देश की कला संस्कृति और हमारे वहां की बोलियों, भाषाओं से लेके इन सबको समझने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। और इस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के माध्यम से भारत के दूसरे राज्यों के दूसरे क्षेत्रों के साथ जोड़ने का एक अवसर है। अब पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच में इन संबंधों को और मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि जब हमारे इन 8 राज्यों के युवा अन्य राज्य के युवाओं के साथ जाकर देखेंगे तो इन युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर एक जानकारी भी मिल पाएगी और उनको एक अलग अनुभव भी मिलेगा। मेरा एक अनुभव अपने सांसद के नाते ये रहा कि जब मैं अपने मेधावी छात्राओं को कॉलेज, स्कूलों में इनाम देने जाता था तो मैं कई बार उसके बाद चाय पीने के लिए रुक जाता था। मैंने बहुत सारे युवाओं साथियों से पूछा कि आपने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से कितने जिले देखे, और जब 7-8 बार कार्यक्रमों में ये हुआ कि 12 जिलों में से हाथ खड़े करने वाला एक भी छात्र नहीं था, छात्रा नहीं थी, 6 जिले देखने वाला भी कोई नहीं था और 2 या 3 जिले देखने वाले भी मुश्किल से 20 से 25% छात्र छात्राएं नजर आते थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या केवल किताबी कीड़ा बन के नंबर लेके, डिग्रीज लेके ये देश को समझ पाएंगे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझ पाएंगे? तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी सांसद भारत दर्शन योजना की।
मेरा उसमें अपना अनुभव ये छोटा सा रहा, मैं तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, 17 विधानसभा क्षेत्र है। वो बच्चे जब यहाँ आकर उपराष्ट्रपति जी से मिले, केंद्रीय मंत्री से मिले, देश के अन्य राज्यों में जाके आईटी क्षेत्र, फिल्म जगत या साइंस के क्षेत्र के लोगों से मिले, स्टार्टअप्स वालों से मिले, तो उनकी सोच ही बदल गई। जो कल तक केवल इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या फौज में भर्ती होने की सोचते थे, उनके सामने 20 विकल्प और खुले हो गए जब देश को घूमने का, अन्य राज्यों से सीखने का उनको अवसर मिला। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा ये अनुभव बहुत सफल रहा और उसके बाद अब कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों ने 30 छात्रों के 10-10 को हर देश ने बुलाया है। तो जो कभी भारत दर्शन कर रहे थे, अब अंतर्राष्ट्रीय दर्शन करने का भी उनको अवसर मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे लाभ किसको मिलेगा? छात्र छात्राओं को मिलेगा। और ये प्रयास हमारा ऐसा है कि जिसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं यहाँ पर हैं, जिन्होंने बहुत इसको लीड किया है। हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ पर हैं, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसका भाग होगा, रेलवे गृह मंत्रालय इसका भाग होगा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर डोनर से लेकर IRCTC, ये सब इसका भाग होने वाले हैं। और हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो छात्र छात्राएं नॉर्थ ईस्ट से लेके बाकी राज्यों के, इनका जब आपस में मिलना होगा तो बहुत सारे विचार भी साझे होंगे। और ऐसे 1000 छात्र और छात्राएं हमारे 300 पूर्वोत्तर से और अन्य राज्यों से 700 इसमें जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये जो इंडिया एट 75 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सही मायने में इस अमृत काल के समय ऐसा कार्यक्रम शुरू करना, युवा संगम के माध्यम से युवाओं को एक दूसरे को जानने का अवसर देना, देश को जानने का अवसर देना, ये आप नींव रखने जा रहे हैं इस अमृत काल में कि भारत का युवा अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर कैसे लेकर जाएगा। और इस स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए युवा संगम कार्यक्रम बहुत सफल होगा, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। मैं एक बार फिर सभी मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों का और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी अधिकारियों का, जिन्होंने एक नहीं 10 मीटिंग से इसके ऊपर की, एक एक बारीकी को बड़े गंभीरता से देखा कि कहां जाकर रहेंगे, कैसे किससे मिलेंगे, बड़ी सिस्टम कैसे होगा। ये अपने आप में दिखाएगा ये केवल एक यात्रा नहीं, एक पूर्वोत्तर का केवल एक दौरा नहीं, बल्कि ये भविष्य का रिश्ता जोड़ने का, जैसे माधवपुर गेड़ मेला प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया कि कैसे रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ हुआ था और उसको नॉर्थ ईस्ट से ब्याहने के लिए कैसे लेकर आए थे। तो पूर्वोत्तर के सारे मुख्यमंत्री जिस तरह से वहां पर आए, एक संबंध गुजरात ही नहीं, भारत का, पूर्वोत्तर भारत पूरे का साथ में जोड़ने का काम किया गया। काशी तमिल संगमम, भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो शानदार काम किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके मंत्रालय को। ये ऐसा अनुभव था हम सब के लिए कि जो हजारों वर्ष पुराना रिश्ता था वो वापस एक बार लाकर खड़ा कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है जब कई सालों के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो सब लोग इस मंच की ओर इस ओर देखेंगे कि जिन महानुभावों ने इसको शुरू किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सोच के लिए, शुरुआत के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक देश, पर्यटन, पारस्परिक संपर्क, को एक पौधा भेंटकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ, Information and Broadcasting, Ministry of Railways and Ministry of Home Affairs. May I now request Shri G. Kishan Reddy Ji, a very dynamic, visionary public leader, Honorable Minister of Culture, Tourism and Development of North Eastern Region, to express his views and address the gathering. Sir, please. भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर
सुभाष सरकार जी और मेरा साथी मंत्री केंद्र सरकार के डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी और सभी अलग अलग केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री का अधिकारीगण और मीडिया फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड सारी रेस्पेक्टेड आदरणीय हमारा साथी संसदगण, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सत्ता के लिए काम नहीं कर, हमारा कोर्ट मिला है 5 साल सत्ता चलाएंगे, ऐसे सरकार नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को हम कुछ करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को बदलाव करने के विकास रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, जो भी सेक्टर आप देख लीजिए, हर सेक्टर में लास्ट 9 इयर्स में एक बदलाव आया है। देश के जनता में सोच में बदलाव आए, भारत के बारे में दुनिया का अलग अलग देश सोच में बदलाव आए। मैं बहुत साल पहले 1993 में मैं अमेरिका गया, जब नेशनल हाईवेज देखते थे। भारत में कभी हो सकता क्या ऐसा मैं समझता था। आज नेशनल हाईवेज भारत में आपको एक विकास का एक सिंबल बनकर दिख सकते हैं। इसीलिए एक नहीं है, ऐसा अलग अलग विषय, एयरपोर्ट्स हो, क्योंकि टूरिज्म दृष्टिकोण से एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन, सभी वंदे भारत ट्रेन्स, भारत का ही ट्रेन्स, भारत देश में यही पटरी पे इतने सुंदर, इतना स्पीड ट्रेन्स कभी चला सकते क्या? ऐसा सोच भी नहीं सकते। मोदी सरकार भी ऐसे चल सकते थे जैसा इतने लगभग 70 साल चला है, मगर नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए हम प्रधानमंत्री नहीं बने, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। हम देश को कुछ करना चाहते हैं। अब देश, आपको मैं बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल देकर मैं समाप्त करता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट का पहले होम मिनिस्टर बन के भी इंचार्ज रहते थे। MYS अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं काम किया हूँ। जब नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी था, मैं लोगों से बातचीत करते थे, जाते थे, मगर लगभग 30 साल नॉर्थ ईस्ट का जो वातावरण था आज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अभी एक विकास का रास्ता पर चल रही है। नॉर्थ ईस्ट का जनता विकास चाहते हैं। जो लोग इंसर्जेंसी के ग्रुप के द्वारा जो आंदोलन करते थे, उनसे हम प्रेम से बात किया, मोदी जी समझाया, उनका समस्या हल करने के लिए प्रयास करें। वो चाहिए, वो जो आंदोलन करते थे, वो लोग चाहते थे विकास। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं विकास। उनका एजेंडा, हमारा एजेंडा एक ही। इसलिए उनको समझाए। जो AK-47 पकड़ के 30 दिन 40 दिन बंद कर देते थे, रास्ता रोको देते थे, एक वातावरण, पीसफुल वातावरण है आज बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। आर्टिकल 370 के एब्रिगेशन के बाद जम्मू कश्मीर और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आंदोलन, जो ऐसे के गतिविधि नहीं है। अभी मैं हैदराबाद से आता हूँ, महीने में एक बार मिनिस्ट्रिंग होता था हैदराबाद, बिल्कुल सेक्रेटरीट के सामने बम ब्लास्टिंग। अभी RDX नहीं दिखते, बम ब्लास्टिंग नहीं दिखते, कम्युनल क्लासेस नहीं, कर्फ्यू नहीं, पीसफुल है, मगर फिर भी कुछ कमी है ऐसा महसूस करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लोगों को जोड़ना,
लोगों को भारत क्या है दिखाना। भारत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, भारत सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, भारत सभी देश में अलग अलग जगह भारत का एक अपना कल्चर, अपना विरासत, अपना विकास सभी लोग देखना चाहिए। इसलिए अलग अलग कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के बारे में हर मीटिंग में कितने मिनिस्टर्स गए, एक नियम किया है, हर महीने लगभग 20 मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। कोई काम नहीं है तो लोगों से मिलके आओ, सिविल सोसाइटी से मिलके आओ, नाइट आउट करो, जिसका विकास का रिव्यू करो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बैठो, बातचीत करो, जम्मू कश्मीर जाओ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नाइट आउट करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट आदेश सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया है, अधिकारियों को दिया है। रिव्यू भी करते हैं, कितने लोग गए, ये महीने क्यों नहीं गए, कौन नहीं गए, नाइट आउट कौन नहीं किया है, सुबह जाके क्यों वापस आया शाम को। ऐसा प्रधानमंत्री जी लोगों को जोड़ने के लिए, विकास के रास्ते पे देश से ले जाने के लिए प्रयास करें। उसके अंतर्गत अभी अभी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, उनके विजन पर एक काशी तमिल संगम किया। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट से सभी चीफ मिनिस्टर्स के एक एक चीफ मिनिस्टर गुजरात ले जाकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का जो कार्यक्रम होता है, रुक्मिणी जी नॉर्थ ईस्ट है, श्री कृष्ण गुजरात से, इसलिए वो कार्यक्रम भी बहुत सफल बना है। कार्यक्रम एक नहीं, अनेक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे भारत का एक पूरा चित्र दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, भारत का विरासत, भारत का कल्चर दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। उसके अंतर्गत अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर देश भर में जो नौजवान, अभी मैं तमिलनाडु गया, तमिलनाडु में कार्यक्रम पे गए, उधर जो लोग काशी तमिल संगम पे नाम पर जो वाराणसी, बनारस, काशी गए थे, उनसे बातचीत किया। जितने लोग गए उसमें लगभग 80% पहली बार तमिलनाडु से बाहर पैर रखा। जितने लोग उधर आए थे काशी में, 80% लोग पहली बार तमिलनाडु बॉर्डर से बाहर पैर रखा है। देश क्या है उनको नहीं मालूम, वो तमिलनाडु में जो है वही सारी दुनिया समझते हैं। नेचुरली हमारे गांव में है तो मैं भी ऐसे समझता था, हमारा प्रांत में है तो मैं भी ऐसे समझता था, मगर सारी देश क्या है, देश में लोग क्या सोच रहे, देश कैसा विकास का रास्ता पर चल रहे, मोदी सरकार कैसा चला रहे, देश में अलग अलग एक्टिविटी क्या हो रहे, इसके बारे में हर व्यक्ति को बताना, हर व्यक्ति को दिखाना, हर व्यक्ति से बातचीत करना, हर व्यक्ति से मिलना हमारा जिम्मेदारी भी बनता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर 100 यूनिवर्सिटीज के छात्रों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहिए। 100 यूनिवर्सिटीज के छात्रों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए उधर क्या खान पान है, क्या वेश है, क्या भाषा है, क्या कल्चर है, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग का क्या व्यवहार होता है, क्या सीखना है, उधर विकास का क्या क्या एक्टिविटी हो रहे, लोग इंपॉर्टेंट कल्चर क्या है, म्यूजिक क्या है, सभी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं अगर उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या गाते हैं, क्या म्यूजिक है, ये सब सीखना चाहिए। वैसा ही नहीं है जिंदगी में अपने पैर के ऊपर खड़ा रहे हो, नहीं तो ऐसा ही टूर्स, ऐसा
एक जगह से दूसरी जगह ले जाए को सीखने के बाद वो अपने आपस आने के बाद उस कल्चर के बारे में बात करते हैं। उसका एक बार स्टेज के अंदर अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, जी नहीं सकते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम का एक रचना किया है। मैं आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर समय है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि एक अच्छे कार्यक्रम का रचना किया है। हम भी पूरे उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ डोनर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सभी लोग मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। सभी अधिकारियों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है इसको ठीक तरीके से सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं सभी देश के छात्रों से, जो देश के यूनिवर्सिटियों से अनुरोध भी करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आज सभी अपना अपना जितने भी योगदान हो सकते हैं योगदान देना चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है ये कार्यक्रम सिर्फ शुरुआत है। अगर ये कार्यक्रम अगर सफल रास्ते पे आगे बढ़े हैं, लगातार ये साल जो आजाद का अमृत महोत्सव का ये साल में इस कार्यक्रम को हर प्रांत से नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के नौजवान देश भर में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवान कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक के नौजवान मध्य प्रदेश आएंगे। ऐसा एक अच्छे कार्यक्रम करने के लिए भारत सरकार प्रयास करे। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए अपना अपना जो भी इस कार्यक्रम में योगदान दे सकते हैं योगदान देना चाहिए। मैं फिर एक बार मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को और अन्य जितने भी टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, डोनर मिनिस्ट्री हो, कल्चर मिनिस्ट्री हो, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो और सभी मिनिस्ट्री को, और मैं खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसद भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम में आप भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूरा सफल बनाने के लिए आप लोगों का योगदान मैं चाहता हूँ, क्योंकि बिना आपसे नॉर्थ ईस्ट में विकास के रास्ते पर अभी जा नहीं सकते हैं। वैसे ही इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भी पूरा आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग से कार्यक्रम मिलकर सफल बनाएंगे। उसके साथ साथ मैं आदरणीय किरण रिजिजू साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम सफल बनाने में पूरा जो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा भी उनका पूरा योगदान होना चाहिए। इस शब्द के साथ मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Is to be organized in a collaborative manner on the model of Kashi Tamil Sangam. The participating ministries will have distinct roles and responsible for implementation of their specific parts. Ministry of Education and Youth Affairs for selection of students, Railway and IRCTC for end-to-end tour arrangements, Tourism and Culture for itinerary. Culture will also be funding the travel part. Sports for organizing the sports program. Development of Northeastern region for the local logistics. Information and broadcasting for communication and outreach activities. Home affairs for the security. To provide armed escorts with the traveling teams. May I now request Shri Kiran Rijizu, a passionate public leader from Northeast, Honorable Minister of Law and Justice, to kindly address the audience. Thank you. मंच पर बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी, किशन रेड्डी जी, अनुराग ठाकुर जी, सुभाष सरकार जी, आर.के. रंजन जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ आए हुए हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, इनवाइटीज जो आए हैं, मीडिया फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन मंत्री का, उनके पूरे टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा शुरुआत आज यहाँ युवा संगम पोर्टल लॉन्च के माध्यम से
बड़ा एक काम शुरुआत करने का ये कार्यक्रम रखा है और साथ साथ जितने संबंधित मंत्री इसमें जुड़ने का है, कल्चर, टूरिज्म, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, रेलवेज और डोनर मिनिस्ट्री, सारे मंत्रालय को भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा शुरुआत की है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के रूप में तो ये भी वैसे ही एक अच्छा कार्यक्रम हम मान सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक जाएगा। जब भी किसी राष्ट्र को हम मजबूत, ताकतवर राष्ट्र बनाने का बात करते हैं तो सबसे पहले कई चीज़ें होती हैं, उसको करना होता है। एक संगठित भारत, यूनाइटेड इंडिया, इसका कल्पना जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक भारत श्रेष्ठ भारत नारा के साथ कई कार्यक्रम शुरू किए, तो आप विभिन्न क्षेत्र में देखने को मिलेंगे कि एक सूत्र में अलग अलग कार्यक्रम का दिशा एक है, भारत को एक सूत्र में बांध करके किस तरीके से आगे ले जाना है। मैं विस्तार में नहीं कहूँगा, लेकिन अपने नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम का चेयरमैन होने के नाते मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज तो हमारे एमपीज ज़्यादा नहीं आ पाए क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, कई एमपीज यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन सबके बिहाफ से मैं धर्मेंद्र जी और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आपने हम सबको यहाँ बुलाया है, इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से आपने शुरुआत की है। आज से कुछ साल पहले हम भी दिल्ली में नहीं थे और बाकी पूर्वोत्तर से कई लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, फिर वापस जाते हैं। उस समय लोगों का जो सोच है और आज के इस काल में क्या सोच है, बहुत फर्क हुआ है। मैं खुद यूनिवर्सिटी में थे, हंसराज कॉलेज में, मुझे भी लगता था कि मुझे कुछ साल रहना है दिल्ली में, फिर मुझे अरुणाचल प्रदेश वापस जाना है। कोई ऐसा मुझे उस चीज़ का दिखाई नहीं दिया उस समय जो हम महसूस कर सके कि कोई ठोस कदम भारत सरकार से उठाया गया हो, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में या कहीं भी जाकर के ये कह सके कि ये मैं यहाँ रहने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ या मुझे वेलकम किया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से। ऐसा कुछ मैंने दिखाई नहीं दिया। पहली बार 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट से जो भी लोग यहाँ आते हैं, उसका सोच में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। वो अपना हुआ नहीं है, इसमें बहुत उसके पीछे जो ताकत है, जो योजनाएं हैं, मोदी जी का सोच है, उसको यहाँ विस्तार में चर्चा करने का समय नहीं है। जो समय मिलेगा फिर सेमिनार वगैरह में हम इसको रखेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर एक मंत्रालय का जो काम काज होता है वो सिर्फ गवर्नेंस या डेवलपमेंट सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। अब ये जो कार्यक्रम होते हैं वो इमोशनल, हार्ट टू हार्ट जुड़ने का, लोगों का दिल तक जाने का, समा जाने का, लोगों को एक साथ जुड़ने का, उस दिशा से भी काम हो रहे हैं। 2014 के बाद तुरंत मंत्रिमंडल जो बनाने का साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि हर सप्ताह कम से कम 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना है। कैबिनेट मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, सबका एक सूची बनाया और हम 3 मंत्री थे, हमारे अनंत कुमार जी तभी हमारे बीच नहीं रहे, तो हम लोग बैठ करके इसको सूची बनाया। फिर प्रधानमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिया, पूरा कार्यक्रम करके हर एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होते हैं
जो देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कई साल पहले आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो हर जगह बंद कॉल होते हैं, क्योंकि कई जातियां हैं, कई समुदाय हैं, इश्यूज रखते थे, सुनने वाला कोई नहीं था। दिल्ली में आएंगे मिलने के लिए कोई सुनने वाला नहीं होते थे। मंत्री तो बिजी होते हैं, अधिकारी भी जितना भी अपने पास है वो तो काम करते हैं, मगर टाइम नहीं मिलते थे। तो मैं जब MOS होम थे तो मैंने इसको बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने उसको कारण जानने का कोशिश किया कि कुछ लोग मुख्य धारा से कैसे भटक गए। कोई कोई कम्युनिटी ऐसे होते हैं जिसका 2000 पॉपुलेशन होते हैं, कोई कम्युनिटी ऐसे होते हैं जिसका 1 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अपना डिमांड होते हैं, उसका अपना एक मांग होते हैं। तो यहाँ आता है तो अब होम मिनिस्ट्री में आएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी को तो मिलने का तो समय है नहीं। जॉइंट सेक्रेटरीज जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतना बिजी होते हैं, अब जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे मिलेंगे तो पॉलिसी लेवल का बात नहीं हो पाते हैं। मंत्री लेवल पहुंचना, जब तक वो डेलीगेशन बड़ा ना हो, मंत्री लेवल का डेलीगेशन ना हो, तो गांव के लोग आते हैं तो मंत्री को नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलते थे। और 7 दिन बैठा, 8 दिन बैठा, 10 दिन बैठा, आखिर में मुलाकात नहीं हुआ और वो डेलीगेशन वापस चले गए। अब किससे बात करें? वो सीधा बंदूक उठा के जंगल चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में। कोई सुनने वाला नहीं है दिल्ली में। तो अब वो सोचते हैं कि अब कैसे करो जिससे हमारी बात सुन सके। तो वो अपना गिरोह बना लिया, AK-47 पकड़ लिया, जंगल चले गए और फिर गुरुवार का रास्ता पकड़ करके अपना जो भी विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। इतना वहां मिलिटेंसी का उस पीक में इतने ज्यादा संगठन थे, कितने फैक्शंस थे दुनिया में, इतना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे। लोग जाने के लिए डरते थे नॉर्थ ईस्ट। मुझे भी कहते थे नॉर्थ ईस्ट जाएंगे लेकिन क्या सेफ है क्या? जब मैं नए MP बने, कई MPs भी बोलते थे नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, सेफ है कि नहीं है, वहाँ बम ब्लास्ट होता है, मारामारी होता है, एजिटेशन होता है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट अपना एक बीमारी का अवस्था में जूझे हुए थे। आज आप सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, आज वो जो समुदाय है उसको दिल्ली आना है तो आ सकते हैं, और भारत सरकार खुद ही नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वही मिल रहे हैं, उनके घर चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक यूनियन मिनिस्टर जा रहे हैं, ब्लॉक तक यूनियन मिनिस्टर जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स का दौरा हो रहे हैं। तो ये जो इमोशनल इश्यूज को जो टैकल करने का मोदी जी ने जिस तरीके से प्रभावशाली अपना खुद मोर देन 51 टाइम्स, आज भी प्रधानमंत्री का खुद का दौरा नॉर्थ ईस्ट में, सीनियर मिनिस्टर्स का, ऑफिशियल्स का पूरा परिस्थिति बदल गई है। अब नॉर्थ ईस्ट के कोने में रहने वाले, म्यांमार बॉर्डर में रहने वाले, चाइना बॉर्डर में, कहीं भी भूटान बॉर्डर या बांग्लादेश बॉर्डर में रहने वाला भी अब सोचते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे लिए सोचते हैं। अब वो फील करने लग गया, जो इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट था, वो खत्म हो गए। हम खुद पार्लियामेंट में चिल्ला के कहते थे। तो आज जो परिस्थिति हुआ है उसको आज के इस कार्यक्रम से एक नई लेवल तक ले जाने का प्रारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अब इसको स्टूडेंट्स, अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आज प्रारंभ किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लोगों को यहाँ पे बाकी देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले जाना, यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाना। मैंने अभी जो नोट पढ़ा 70-30 के रेशियो में बहुत अच्छा रेशियो बनाया है। और रेलवे का इसमें क्या रोल रहेगा, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, डोनर मिनिस्ट्री का, तो ये टूरिज्म कल्चर सारा मिलकर के जिस तरीके से प्लान किया है, आगे करेक्शन या इम्प्रूवमेंट करना होगा वो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट इतना सुंदर कंसेप्ट बना करके ले जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि PM साहब जैसे सोचे थे बिल्कुल उसी रास्ते पे ये प्रोग्राम का कंसेप्ट बनाया गया है और इसी दिशा में हम आगे जाएंगे। तो जो 2047 में
भारतवर्ष को एक विकसित देश बनाने का जो सपना है, to make India a fully developed nation by 2047, when we would be celebrating our centenary of independence celebration, India would be already a developed country. And that dreams cannot just achieve by mere launching schemes and programs. You have to make every Indian connected to each other, heart to heart, soul to soul. This emotional connect is extremely important. We may be a very diverse nation, but we have to be a united nation. I think this portal launch program is absolutely well on course to establish India as one of the most powerful nation and fully developed nation by 2047. India is a unique nation whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious threads held together into a composite national identity. The idea of Ek Bharat Shreshtha Bharat, a sustained and structured cultural connect among people of different regions, was mooted by Prime Minister Shri Narendra Modi during the Rashtriya Ekta Divas. India is a nation with one of the youngest populations in the world. To strengthen people-to-people connect and build empathy between youth of the northeastern states and other states, Government of India has conceptualized an initiative of Yuva Sangam under Ek Bharat Shreshtha Bharat as a collaborative effort of various ministries. The Yuva Sangam will focus on conducting exposure tours of the youth comprising of students and off-campus youngsters from northeastern states to other states and vice versa. It will provide an immersive, multi-dimensional experience of various facets under 5 broad areas of Paryatan, Parampara, Pragati, Pradyogik and Paraspar Sampark. To enable our youth to understand and identify with the diversity of India, Yuva Sangam tours are being organized for youth of different states with an aim to promote a sense of respect towards each other's heritage, culture, customs, traditions. To further the spirit of Shreshtha Bharat, the pilot Yuva Sangam will have such amazing exchange opportunities for students of northeastern India, where they shall visit the other states and have students of other Indian states visit the amazing northeastern states. Through the course of the program, students will interact with each other in the areas of language, literature, cuisine, festivals, cultural events and tourism. In short, they'll get a first-hand experience of living in a completely different geographical and cultural scenario. As India marches into the Amrit Kal envisioned by our Honorable Prime Minister, the initiative of Yuva Sangam will inculcate common spirit of understanding among thousands of youth participating in the program, which shall resonate throughout the country and contribute immensely towards building a truly Shreshtha Bharat. Language, traditions, culture, development, extraordinary infrastructure India developed in the last few years, the technology, ideas, innovation, research, people-to-people connect and many more. And who all can apply? That's a very important question. Who is youth? So we allowed the youth for the students from higher education, startups, the employed, NSS, NYKS volunteers, and self-employed persons. So as sir already mentioned, the 300 youth from Northeast and 700 from other states of the country. And the youth, the age group between 18 to 30 years. And we have given equal representation for this, and from a male to female and their educational background, and equal representation of rural and remote youth, and the startup and entrepreneurs of the youth of this country. So now I would like to present, which all institutes are paid. So if you see, these are the pilot initiative. We have 11 higher education institutes from Northeast and 14 from the rest of the country.
So now I'd like to go through the portal demonstration quickly in a minute. विकास एवं उद्यमिता मंत्री महोदय, आपको मंच पर आमंत्रित करना मेरा परम सौभाग्य है। नमस्कार। मंच पे उपस्थित देश की पर्यटन, संस्कृति तथा पूर्वोत्तर विकास विभाग के मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, देश की कानून और न्याय विभाग के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी, देश की सूचना प्रसारण तथा युवा और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, शिक्षा विभाग की मेरे सहयोगी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, हमारे सांसद साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक वृंद और पत्रकार साथीगण, मेरे सभी पूर्ववर्ती मित्रों ने इस कार्यक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री की विजन के बारे में तथा अभी जो मूवी आई है उस मूवी के प्रदर्शन के साथ साथ इस कार्यक्रम की एक मोटी लेखा जोखा आप सभी के सामने आई है। और पोर्टल अभी आप लोगों की उपस्थिति में एक प्रकार से इस युवा संगम हमारे देश में अपने आप में एक महत्व रखती है। भारत की कुछ शब्द ऐसे हैं, सभी भाषाओं में एक ही होता है। हमने प्रयास किया है, मैं कोई दावा नहीं करूँगा, लेकिन प्रयास किया है। संगम यानी उसकी मोटी अर्थ देश भर में एक है, मिलना जुलना, एकत्रित होना, इसी की नाम है संगम। कार्यक्रम की प्रयास है, इसमें भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें, सभी विभिन्न ऑटोनोमस बॉडी, खेल संगठन, युवा संगठन, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक संगठन तथा एक प्रकार से ये हमारी अपेक्षा है, भी कहा कि ये पायलट है, लेकिन अपेक्षा ये सभी नागरिक इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हो जाए। मानो सिक्किम की कोई एक डेलीगेशन भारत की कोई राज्य में आता है तो आएगा तो जलपाईगुड़ी होके, तो जलपाईगुड़ी में भी चाय वाले को मालूम होनी चाहिए मेरे वहाँ एक भारत की श्रेष्ठ भारत की टीम जा रहा है, तो मैं उनको आदर से पैसा ही लूंगा, लेकिन थोड़ा चीनी और लगा दूंगा। ये जो फीलिंग बनानी है देश में, सभी नागरिकों की इसमें से पार्टिसिपेशन की अपेक्षा है। इस प्रकार की माहौल हम सभी लोग नहीं लगेंगे तो नहीं बनेगा। अभी एक सफल प्रयोग भारत सरकार की ओर से किया गया काशी तमिल संगम, लेकिन वहां तो तमिलनाडु की सभी गांव, समाज की सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न राज्यों में ट्रेन में बिठा के लेके आया गया। 3 दिन की उन्होंने प्रवास किया। यहाँ भी ऐसे होगा, एक राज्य की छात्र युवा एक राज्य में जाएंगे, आएंगे ट्रेन में, जाएंगे ट्रेन में, उनकी सत्कार रास्ता भर में किया जाएगा, उनकी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। जिस जगह पे इधर से लोग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की, कलिता दा भी पीछे बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत आभार। और जो मित्र उधर से भी आएंगे, यानी नागालैंड का कोई प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद जाता है तो किशन जी कह रहे थे हम उनको वैक्सीन जहां बना वहीं ले जाएंगे। आखिर वो नागालैंड का नौजवान को मालूम होनी चाहिए मेरे देश को सुरक्षित करने वाला वैक्सीन आखिर बना कहां। महाराष्ट्र में जो आसाम की नौजवान आएंगे उनको शिवाजी के उस वीर भूमि में घुमाया जाएगा, तब तो कंपेयर करेगा कि लाचित बरफुकन और शिवाजी में तालमेल क्या है। इसी में तो एक भारत की श्रेष्ठत्व ही दिखेगा। जो ब्रह्मपुत्र की किनारे के लोग या परशुराम कुंड की नौजवान जब जाके पहुंचेगा एकदम पश्चिम में, गुजरात की कच्छ में घूमेगा, उनको लगा रहे भारत ऐसा भी है क्या। और जब मैं दावे के साथ कहता हूं जब देश के लोग जाएंगे, पर ये पीढ़ी को तो हमारा अपेक्षा ये बाहर कहीं घूमने ना जाए, ये जब बस समर्थ हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट ही जाए। नॉर्थ ईस्ट में इतनी सुंदरता है, इतनी पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है, सिर्फ सुंदरता नहीं है। जैसे अभी कहा गया
कि इस कार्यक्रम की उद्देश्य 5 है। इस कार्यक्रम की उद्देश्य पर्यटन है, रोजगार बढ़ेगी, हमारी परंपराओं को समझाना ही है। सीइंग इज बिलीविंग, बिना देखे कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए तो सीधा ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक प्रकार से हो रहा है। देश में बोगीबील ब्रिज के इधर से उधर जब हमारे नौजवान मध्य प्रदेश की पदयात्रा करेंगे तब उनको ध्यान में आएगा, अरे बाप रे ब्रह्मपुत्र ऐसा ही होता है क्या, इतना बड़ा होता है क्या, तब जाके ब्रह्मपुत्र की कल्पना उनकी दिमाग में आएगी। जब टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा बॉम्बे हाई में, जब मणिपुर की एक डेलीगेशन जाएगा, देखेगा कि दरिया के अंदर 200 किलोमीटर के अंदर एक नया शहर है जहां तेल उत्पादित होती है, हमारे देश की ऊर्जा शक्ति उसमें से प्राप्त होती है, तब तो देश को वो प्रेम करना शुरू करेगा, टेक्नोलॉजी को लोहा मानेगा। और ये सारे करते करते जब हम सभी के मन में है, विशेष करके मैं किशन जी का एक बात को नहीं भूलना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जहां जाएंगे, हमारे अनुराग जी ने कहा कि जहां जाएंगे वहां यूनिवर्सिटी में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, एक लोकल विद्यार्थी इधर से हो उधर से उनकी साथी रहेगा, किसी के घर में एक बार जाएंगे, किरण जी भी रहेंगे, जब ईटानगर में जाएंगे उनको मछली खिलाएंगे, तभी तो जाके आदर सत्कार, घर में जैसे अतिथि आता है ऐसे ही आत्मीयता के साथ नौजवानों को जब हम देश को समझाएंगे, मित्रों कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना किया गया है। भारत सरकार की सभी विभाग मिलके, भले ही आप 3-4 विभाग के मंत्री एकत्रित यहाँ आए होंगे, लेकिन भारत की सभी सरकार की सभी विभाग, सभी नॉर्थ ईस्ट की सरकारें, सभी राज्य सरकारें इनकी मदद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर, सारे सांसद, सारे जन नेतृत्व, सारे बुद्धिजीवी, सारे शिक्षक, सारे नई पीढ़ी के लोग इस कार्यक्रम को एक प्रतिष्ठा के साथ ऊपर उठाएंगे, उसमें हमारी कोई अविश्वास नहीं है। ये पोर्टल क्यों? मित्रों अनेक कार्यक्रम ऐसे पहले भी हुए हैं, लेकिन कौन गए हैं? मेरे 6 लोग, किशन रेड्डी जी के 8 लोग, युवा व्यापार विभाग के मंत्री तो है, तो वो तो 12 लोग भेजेंगे। ये परंपरा को मोदी जी ने बंद कर दिया। टेक्नोलॉजी पारदर्शी तरीके से होगा, इसीलिए पोर्टल लॉन्च किया गया। किसी को मालूम नहीं होगा, जिसके आग्रह होगा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से एक्सपर्ट्स उनकी रुचि को एआई में डाल के निकालेंगे कि कौन आग्रही है। एक प्रकार से कंपटीशन होगा। कंपटीशन से हमने अभी 2500 लोगों को लाया, हमको पोर्टल बंद करना पड़ा। तमिलनाडु में 25,000 लोग ने 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया। हमको बंद करना पड़ा क्योंकि एक बार करना था साल में, ये तो हर एक महीने में होगा। इसलिए ये पोर्टल में अभी रजिस्ट्रेशन, मेरा पूरा भरोसा है, ठीक से हो जाएगा, पारदर्शी तरीके से होगा। सभी जिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी आयु वर्ग को मिलेगा, सभी प्रकार की पृष्ठभूमि को मिलेगा। लड़कियों को तो प्राथमिकता दिया ही जाएगा, यहाँ 50-50 कहा गया, मैं तो कहूंगा उसको थोड़ा बढ़ा भी दो। हमारी नारी शक्ति इस बार 26 जनवरी में पराकाष्ठा दिखाया है। इनको सभी को संभाल के हम आगे एक नई, जब देश विकसित तभी तो होगा, 2047 तक भारत में अपने आप में एक नई माहौल खड़ा हो जाए, इसीलिए इस कार्यक्रम का रचना किया गया है। आज से ये पोर्टल श्री गणेश हो रहा है। पोर्टल में इसी महीने में कोशिश है हर एक महीने में इस प्रकार की एक्सचेंज प्रोग्राम का, इस बार स्टूडेंट्स का किया गया, अगले बार पत्रकारों का भी किया जा सकता है, लेकिन होगा चयन कंपटीशन रूट में। तो देखेंगे कहाँ कैसे क्या काम होता है, सुंदरता कहाँ क्या है। टूरिज्म की जितने सब इंटरप्रेटर है उनको भी इकट्ठा कभी लाया जा सकता है। स्टार्टअप्स जो लोग अपना अपना राज्य में, उनको भी लाया जा सकता है। सिर्फ लड़कियों को भी एक बार लाया जा सकता है। वेरिएशन लाएगा, आप लोगों की परामर्श भी उसमें आवश्यकता है। इसमें पोर्टल में अगर है, बुद्ध जी एक सजेशन बॉक्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको जोड़ दीजिए। लोगों की आइडिया से उसको एम्पावर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें तो मैं शिक्षा विभाग की स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा दोनों को मैंने कहा है कि इसमें आने वाले लोगों का
ऐसे घूमने घामने के लिए सिर्फ नहीं होनी चाहिए, उनको विषय दिया जाए। विषय में मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में वो आते हुए एक पेपर लिखे, पेपर लिख के उसको जिस इंस्टीट्यूशन से जो आया वहां डिपॉजिट करे। जाने के पहले उसको त्रिपुरा के बारे में जानकारी दिया जाए, त्रिपुरा की कृषि क्या है, त्रिपुरा की अर्थनीति क्या है, त्रिपुरा की एजुकेशन क्या है, त्रिपुरा के समाज जीवन कैसे है। कोई नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी अगर केरला जाते हैं, केरला क्या है, टेम्परेचर क्या रहता है, इतिहास क्या है, नारायण गुरु कौन है, उसके बारे में बताया जाए और बाद में वो परीक्षा दे। उस परीक्षा को इवैल्यूएशन करते हुए उसको क्रेडिट पॉइंट दिया जाना चाहिए। वो शिक्षा विभाग ने मेरे को आश्वस्त किया, इसकी व्यवस्था करेगा। और उतने में फिर अपना सोशल मीडिया में अपना पराकाष्ठा दिखाए, कविता लिखे, कहानी लिखे, अनुभव लिखे, फोटोग्राफ अच्छा बना है तो डाले। क्या पता वो फोटोग्राफ शायद आने वाले दिनों में विश्व की कोई कंपटीशन में चला जाए। इस प्रकार की एक स्पर्धा हम सब लोग का इच्छा है बने, देखते हैं कैसा होता है। आप सभी की सहायता से अच्छा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसकी प्रसिद्धि आप लोग अच्छा करेंगे, समाज के लोग इसको आगे ले जाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। Distinguished guests on the dais, and all the media friends, I, on behalf of All India Council for Technical Education and also the Government of India, would like to thank Honorable Prime Minister, Minister of Education, Minister of Culture and Tourism, Ministry of Development of Northeastern Region for giving All India Council for Technical Education to develop this portal which will select the participants in this Yuva Sangam in a very transparent and an online mode. And thank you, sir, for giving AICTE for this opportunity. I would like to also express sincere appreciation and gratitude for all of you who have assembled in this hall for this launch of the portal and also for your attendance on today's event. Having served as the director of IIT Guwahati in Assam, I can vouch that the impact and the benefits of this initiative will have on the young minds of the Northeast and on the youth of the rest of the country. I also would like to tell you, as Kiran Rijiju sir was saying, in Assam, Guwahati, we just took a survey in 2021. We have students from 600 districts of the almost 780 plus districts in the country. This was really an eye-opening for us, actually. And in 2000, many of us, myself even not gone there, but in 2021, in 20 years, there is a lot of change, particularly after 2014. A lot of students are visiting Northeast, and this will actually boost that activity. This particular program, the youth visiting, will get to see the beautiful landscape and scenic of Northeast, and will also witness the diverse traditions and cultures, along with an opportunity to interact with the people of the region. These exposure visits to Northeast will not only strengthen people-to-people connect, but also will send out a positive feeling of inclusivity and oneness of our Northeast brethren. As the youth are the best backbone of this country, this program will go down as one of the most revered and an important milestone in our efforts of forging ahead to build a great nation. Individually, I would like to take this opportunity to thank Sri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, for an excellent idea of this, to launch this event in the Ministry of Education, along with Sri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and IND, Government of India, and also Sri G. Kishan Reddy Ji, Honorable Minister of Culture, Tourism and Donor, along with Sri Kiran Rijiju Ji, Honorable Minister of Law and Justice, for his presence, and Dr. Subhash Sarkar, Honorable Minister for State for Education, and Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Honorable Minister of State for Education, for being present in this meeting of the portal launch. And also I would like to thank Sri Sanjay Murthy Ji, Secretary Minister of Education, and all the members of the Parliament who are present in this hall, and all the officers of all the ministries of Government of India, and also the media friends for attending, for making this launch of Yuva Sangam a grand success and a momentous event. I hope now, from now onwards, this Yuva Sangam portal will be on,
and maybe we can give a message saying that everybody can register online, and it will be selected, as Honorable Minister said, through a very transparent mechanism, through an online AI-based tool which has been developed at AICTE. Thank you very much. Thank you all. Namaskar. जय हिंद, जय भारत। कैंपस के स्टूडेंट और ऑफ कैंपस यूथ, उनके लिए जो 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के हैं, इसमें 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के होंगे और 14 राज्य या अन्य राज्य जो बाकी देश भर के इसमें शामिल होंगे। पहला पायलट प्रोजेक्ट 1000 युवाओं के साथ किया जाएगा, जिसमें 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे। जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परंपरा, वहाँ की प्रगति, वहाँ की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है। भारत की विविधता को पहचानने के लिए, समझने के लिए उनको सक्षम बनने का अवसर मिल पाएगा। और यही नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और हमारा नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय के साथ ये सब मिलकर काम करेंगे। एक तरह से भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में शानदार प्रयोग है। और आपको याद है, मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में 140वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, तब ये घोषणा की थी। और वित्त मंत्री जी ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे हमें उन क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी हो, पर्यटन हो, वहाँ की परंपराएं हो, उनको परस्पर जानने का और परस्पर संपर्क करने का अवसर भी मिलता है। और एक तरह से अटूट बंधन हमारा युवाओं का नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के साथ होता है। ये वहाँ की विविधताओं को, रीति रिवाजों को, वहाँ की परंपराओं को, उनके प्रति सम्मान की भावना को भी और बढ़ाएगा और उनसे सीखने का भी इन सबको अवसर मिलेगा। आज पोर्टल लॉन्च हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट भी फरवरी महीने में ही शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जिस तरह से काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री जी की सोच का एक बहुत सफल उदाहरण है, उसी तरह से ही माधवपुर गेड़ मेला, जो नॉर्थ ईस्ट से मां रुक्मिणी का विवाह जो भगवान कृष्ण के साथ गुजरात के तट पर हुआ, उसका भी बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ पर माधवपुर में बहुत बड़ा वहाँ पर आयोजन होता है। उसी की तर्ज पर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का युवा संगम आज पोर्टल लॉन्च हुआ है, आगे पायलट कार्यक्रम भी लॉन्च होगा।